Good morning, friends. Today we will be visiting the Anchaleshwar temple and the mausoleum of Gond King in Chandrapur, a district in the state of Maharashtra. The city of Chandrapur is historically very important place in the central region of India. Central region of India was mostly ruled by the Gond dynasty. Gond people are actually the part of the Adivasis of India. Friends, in ancient time, Gond diaspora spread throughout central India. After passage of many kings who were Samantas of the other rulers, Gond king Khandakya Ballal came to the throne and he ruled the region from 1470 to 1495. गोंड किंग खांडक्य बल्लाल ने चंद्रपुर नगर की नींव रखी. Just inside the Gond fort, near the Anchaleshwar gate in Chandrapur, is the ancient Anchaleshwar temple dedicated to Lord Shiva. It was built in the 16th century. इस ऐतिहासिक अंचलेश्वर टेम्पल से जुड़े हुए कई इंटरेस्टिंग लीजेंड्स हैं, रोचक किंवदंतियां हैं जो हम इस वीडियो में आगे सुनेंगे. हम इस हिस्टोरिकल अंचलेश्वर टेम्पल और इसके पास बने गोंड राजाओं की समाधि स्थल मौजोलियम को बहुत ही बारीकी से देखेंगे, नज़दीकी से देखेंगे और जानकारी लेंगे. My co-traveler Mr. Subodh and a student of architecture, he explained me about the legends associated with this मंदिर. तो यहाँ से गर्भगृह, जिसको मराठी में गाभारा बोलते हैं, उसकी स्टार्टिंग होती है. ये गर्भगृह में बिना लिंग का एक शिवलिंग है. ये जो गड्ढा आपको नीचे दिख रहा है, ये गड्ढा रीजन है ये पूरी चंद्रपुर सिटी बनने के पीछे. जब राजा खड़का बल्लारी शाह जी जो थे वो शिकार पे आए थे चंद्रपुर में, उनको प्यास लग गई. उनका नाम खड़का बल्लारी शाह जो था ना, उनके फेस पे पूरे खंडुक थे, छाले पूरे फेस भर, तो नाम रखा था खड़का बल्लारी शाह, क्योंकि उनके चेहरे पे पूरे छाले छाले खंडुक थे. तो वो यहाँ पे शिकार के लिए जब आए थे तो यही गड्ढे के पानी से उन्होंने मुँह धोया था और ये पानी पिया था. यहाँ से वापस जाने के बाद उनकी रानी ने उनको बोला कि आपके ये जो ट्यूमर्स है, छाले हैं, ये बहुत कम हो गए, तो आपने क्या किया, ऐसा क्या ट्रीटमेंट किया. राजा को कुछ ट्रेस नहीं हुआ कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, अपने आप कैसे कम हो गए. फिर राजा को याद आया कि ये ऐसा गड्ढे का पानी मैंने पिया था और इसी से मुँह धोया था. The Gond king Khandakya, who resides in Sirpur, now in Telangana, was covered in tumors. His beautiful wife nursed him. She asked him to leave Sirpur and move to the north bank of the Vardha river. There the king built the fort he named Ballarpur and thus founded the city of Ballarpur. One day, while hunting in the northwest of Ballarpur, the king became thirsty and rode up to the dry bed of Charpat river in search of water. There he discovered sprinkle of water trickling out from the holes of a stone on the riverbed. The king drank the water, washed his face, hands and feet, and that night he slept very soundly for the first time in his life. When the king returned to Ballarpur, his queen was delighted to see that many of the tumors on his husband's body had disappeared. राजा ने अपने रानी को भी अपने साथ उस पानी वाले गड्ढे पर ले गए और उस जगह को एक पवित्र स्थान घोषित किया. गोंड किंग खंडक्या बल्लाल ने चंद्रपुर को अपनी नई राजधानी के रूप में बसाया. इसी स्थान पर अंचलेश्वर मंदिर की स्थापना की. तो आइए हम गोंड राजाओं द्वारा बनाए गए अंचलेश्वर मंदिर को और इसमें उकेरे गए कलाकृतियों पर जरा एक नज़र डाल लेते हैं.
और अब हम चलते हैं गोंड वंश के राजाओं के समाधि स्थल यानी मौजोलियम की ओर और जान लेते हैं गोंड राजाओं से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को। तो चलिए अंदर चलते हैं। The majestic mausoleum of the Gond king Virsha was built by Gond queen Rani Hirai in memory of her beloved husband in early 17th century. The tomb is the biggest mausoleum of a king in the Maharashtra and has intricate carvings. Queen Hirai ascended to the throne after death of her husband King Virsha. As Gond dynasty at that time has no male heir, she ruled for next 15 years from 1704 to 1719, and during this period she built the monument. It is the only mausoleum built by a queen in the memory of her husband. Wow, what an example, isn't it? शेवटचा राजा आहे वीरशाह. ही वीरशाहची समाधी आहे, पुढं राणी हिराईची आहे. So there remain the Samadhi of Rani Hirai, the great queen of King Virsha. Let us give a close look to the Samadhi of Queen Hirai, the majestic queen of Chandrapur. अब आइए चंद्रपुर के द्वितीय राजा वीरशाह से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को हम जान लेते हैं सुबोध से। राजा वीर शाह बड़े महान राजा थे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, बहुत बड़े बड़े युद्ध जीते हैं और इन्होंने अपने भांजे के साथ तक युद्ध किया है। इनके भांजे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर शिरपुर में रूल किया करते थे, वो इनके सामंत राजा थे और इन्होंने इनके भांजे को इनकी बेटी पसंद थी और दोनों का अफेयर चल रहा था। तो इन्होंने उनके भांजे ने इनसे उनकी बेटी का हाथ मांगा था। तो इनके भांजे को इन्होंने बोला, तुम मेरे सामंत राजा हो, तुम छोटे दर्जे के हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकता। तो उनके भांजे ने इनको धमकी दे दी कि मैं आपकी बेटी को भगा के ले जाऊंगा। ये सुन के ये राजा चिढ़ गए और इन्होंने शिरपुर पे अटैक कर दिया। शिरपुर पे अटैक करने के बाद इन्होंने लिटरली शिरपुर के किले का एक भी फुटिंग का पत्थर, जैसे किले की किलाबंदी है तो किलाबंदी का एक भी पत्थर जगह पे नहीं छोड़ा, पूरा किला उजाड़ दिया। किला उजाड़ने के बाद इन्होंने वहाँ पे इनका मतलब इनके भांजे को ढूंढना चालू किया। तो इनके भांजे का जो भाई था, इनका छोटा भांजा, उसको ये डर लगने लगा था कि कहीं हमारी जहांगीर जो है वो पूरी लुट ना जाए। इसीलिए उसने ये बता दिया कि मेरा भाई जो है जिसको आप ढूंढ रहे हो वो यहाँ अभी शिरपुर में नहीं है, वो अंडरग्राउंड रास्ते से पहले शिरपुर, ये चंद्रपुर और कायर, ये तीनों शहर अंडरग्राउंड रास्ते से जुड़े हुए थे, लिंक थे अंडरग्राउंड रास्तों से। तो इन्होंने बता दिया उनके भाई ने कि मेरा भाई यहाँ से निकल गया है अंडरग्राउंड रास्ते से चंद्रपुर के लिए। तो उन्होंने चंद्रपुर में मैसेज भेज दिया कि जहाँ से ये रास्ता निकलता है वहाँ लकड़े भर दो और जला दो। शिरपुर में उन्होंने खुद ने लकड़े भरवा के जला दिए और कायर में भी मैसेज भेज दिया। कायर के राजा जो थे इनके सामंत राजा थे, तो वहाँ पे बोल दिया कि वहाँ भी लकड़े भर के जला दो। हफ्ता भर तक वो पूरी गुफा के तीनों मुंह जलते रहे और अंदर इनका भांजा सफोकेशन से मर गया। राजा ने अपने बेटी की शादी मध्य प्रदेश के गोंड राजा से करवा दी थी। मध्य प्रदेश के जो गोंड राजा थे वो भी काफ़ी कुशल राजा थे और इनके बराबरी के दर्जे वाले राजा थे, इसीलिए इनकी शादी उन राजा से हो गई। उसके बाद इनकी बेटी को कोई पुत्र संतान प्राप्त नहीं हो रहा था, बेटा नहीं हो रहा था, जो हुई बेटियां हुई। इसके चलते वहाँ के राजा ने इनकी बेटी को अपमानित करके वापस भेज दिया। वापस मायके में इनकी बेटी आने के बाद इन्होंने बताया कि ससुराल में मेरे साथ ये सब हुआ। उन्होंने अपने दामाद के खिलाफ जंग छेड़ दी और अपने दामाद को कैद करके उसका सिर काट के लाया और सिर काट के महाकाली जी को चढ़ाया और यहाँ पर महाकाली का बड़ा मंदिर बनवा। और यहाँ पूरी समाधियों में सबसे बड़ी समाधि इनकी है। रीज़न ये है कि इनकी महानता और इनकी रानी का इनके प्रति प्रेम, ये बहुत कम उम्र में गुजर गए थे, अपनी आधी उम्र तक नहीं जिए थे। ये काफ़ी कम उम्र में राजा बन गए, काफ़ी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती और उसके बाद ये गुजर गए। गुजर जाने के बाद इनकी रानी ने इनके लिए ये सबसे बड़ी समाधि बनाई। चंद्रपुर के पहले राजा खानक्या बल्लारी शाह जी की समाधि, तो इनका भी बहुत ग्लोरियस पास्ट है। ये पहले बल्लारी शाह में रूल किया करते थे। जैसे चंद्रपुर सिटी को बसाने के पीछे इनका हाथ है, तो इन्होंने चंद्रपुर सिटी को बसाया है, इसको फलाया फुलाया है, इतने किले का निर्माण किया है इन्होंने। और ये भी बड़े महान राजा थे। ये अपने आवाम को खुश रखते थे, अपनी जनता को खुश रखते थे, जनता प्रेमी राजा थे। ये है समाधि कॉम्प्लेक्स के अंदर की बावड़ी। यहाँ से ये समाधि कॉम्प्लेक्स के एरिया में पानी मिलता था और वहाँ 3 आर्चेस है, कमान, 3 कमान के नीचे एक रूम है। वो रूम में यहाँ पे आए हुए मतलब अपने पूर्वजों के साथ समय बिताने के लिए आए हुए राजघराने के लोग बैठा करते थे। अभी
ये जो गड्ढा है, ठंडी हवा यहाँ जाके बैठती थी, गर्म हवा यहाँ से निकल जाती थी। गर्म हवा निकलने के बाद ठंडी हवा जो यहाँ बैठती थी, यहाँ की ह्यूमिडिटी लेके वो रूम्स में सर्कुलेट होती थी। मोस्टली जनाना माने औरतें नीचे बैठा करती थी, आदमी ऊपर बैठा करते थे। ऊपर साइड आदमी, नीचे साइड औरतें। जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे वो राजा आके अपनी वाइफ्स को देखा करते थे यहाँ से। फिर यहाँ से देखेंगे सभी पूरा समाधि कॉम्प्लेक्स पे यहाँ से नज़र मार सकते थे। यहाँ पे क्लाइमेटिकली डिजाइंड है ये चीज़, स्टैक्ड इफेक्ट के कारण ये दोनों रूम्स, निचला रूम और ऊपर का रूम दोनों ठंडा रहता है। निचला रूम ज़्यादा ठंडा रहता है, ऊपर का रूम थोड़ा कम ठंडा रहता है। स्टैक्ड इफेक्ट, क्लाइमेटिकल डिज़ाइन है स्टैक्ड इफेक्ट, जिसे ठंडा हवा नीचे जाएगा तो हवा यहाँ की ह्यूमिडिटी को लेके अंदर ठंडा करेगा। इवेपोरेटिव कूलिंग और स्टैक्ड इफेक्ट दोनों चीज़ें मिला के यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट तैयार किया है। जो पूरे किले का निर्माण हुआ था, पूरे चंद्रपुर के किले का जब निर्माण हुआ था, सबसे पहले ये हिस्सा बना था। इसको बाले किला बोलते हैं, चाइल्ड फोर्ट। फोर्ट के अंदर एक चाइल्ड फोर्ट, जहाँ पे मोस्टली नोबल पर्सन रहते थे। और ये सब निर्माण शुरू होने के पहले सबसे पहले ये टाकियाँ बनती थी। ये टाकियों में ये जैसा आप देख सकते हैं चूना भिगोया जा रहा है 7 दिन तक। स्लेक्ट लाइन मतलब जो तपाया हुआ चूना है, यहाँ डाल के उसमें पानी डाला जाता था और ठंडा पानी डालते डालते वो पानी उबल जाता था। इतनी हीट वो चूने के रिएक्शन से, कैल्सिनेशन प्रोसेस। इसमें आप जो देख रहे हैं चूने के पत्थर वगैरह है, चूने का पत्थर वगैरह है ना, तो ये सब चूना जो है भीग गया है, ठंडा हो गया है, इसको निकाल के इसमें वो चूना डालते थे। ये नाली में चूना ये डालता था। भिगोया हुआ स्लेक्ट लाइन, जिसको भिगा के ठंडा किया, कैल्सिनेशन करने के बाद ये नाली में डालते थे। और ये जो दिख रहा है ये चक्की है, चूने की चक्की। इसको खड़ा करके वो सेंटर का पार्ट है ना, यहाँ से डंडा जॉइंट, उसके थ्रू डंडा पास करते थे। यहाँ से निकला हुआ डंडा इसके थ्रू पास होके बैल के कंधे पे रखते थे। वो बैल इस चक्की को घुमाता था और जैसे चक्की घूम के गई तो एक आदमी क्या करता था, ये चूना साइड में चिपक गया तो अपना बच्चा लेके दोनों तरफ से चूना फिर से नीचे डालता था। ऐसा करके पूरा चूना पीसता था। और ये पिसे हुए चूने को एज अ मोर्टार, कुछ बांधकाम बनाने समय पत्थर चिपकाने के लिए मसाला, ये चूना यूज़ करते थे। इसमें और भी अलग अलग चीज़ें डलती थी, जैसे गुड़, अपना उड़द की दाल, अपना बेल फल का जो चिपचिपा सा होता है, और बहुत अलग अलग पेड़ों का जो ये गोंद निकलता है, वो सब डलता था इसमें। तो यहाँ समाप्त होती है हमारी चंद्रपुर के ऐतिहासिक धरोहर अंचलेश्वर मंदिर व गोंड राजाओं के समाधि स्थल का ये सफ़र। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जल्दी ही।